السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں میم؟ الحمدللہ، آپ سنیں میری آواز؟ ویڈیو آ رہی ہے؟ ویڈیو نہیں ہے، آواز آ رہی ہاں، یہ تو مجھے بھی لگا کہ ویڈیو نہیں ہے، یہ میرے بچے لگا جاتے ہیں اور اب مجھے لگانا یہ آ گئی ہے، چلیں آ گئی ہے، یہ آ گئی ابھی شو نہیں ہوئی ادھر، آپ کو آ جائے گی، ابھی مجھے تو آنے لگ گئی، آ گئی، آ شو گئی، کی ہے، ہاں ہو شو گئی۔ بالکل۔ اور کیسے ہیں اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اپنا اپ اینڈ ڈاؤنس آپ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ میں نے تو میم ابھی آپ کو بتایا میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ جو امیجنیشن تھی اور یہ ساری ڈریسنگ وغیرہ، یہ میری امیجنیشن تھی یا جس بندے کے ساتھ میرے پیر بنے یہ اس کی پاگل کرتا امیجنیشن تھی؟ اس کی بھی ہو سکتی ہے، آپ اپنا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو تھاٹ کس کی آئی تھی؟ میں یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ کو یہ بھی آپ ویریفائی کریں کہ آپ کو کس کی سوچ آئی ہے، کسی وہ پرسن کے جس ساتھ؟ کے ساتھ میرا پیر ہاں جی، ہاں، جس کے ساتھ میرا پیر بنا ہوا ہے، صرف ایک ہی بندے کی آ رہی ہے تھاٹ، اور اسی کے ساتھ سارا کچھ وہ سین اور یہ وہ ساری چیزیں۔ بس پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم کہاں تک پہنچے تھے، یہ انرجیٹک محسوس کرتے ہیں، یہ والا ہو گیا تھا۔ ہاں جی، یہاں یہ ہو گیا ہے، اب یہاں سے کرنا ہے یہ یہ والی۔ گوز بامپ ہے۔ ہاں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب یہ اگر ہمارا اس طرح کا مائنڈ بننا شروع ہو جائے اور پریکٹس کی، اور جب کبھی ہم کسی ٹینشن اور ایسی پریشانی والی سچویشن میں ہوں تو اس میں بھی بہت مائنڈ آپ کو نا سٹریس نہیں لینے دیتا، وہ آپ کو ایسی ایسی جگہ دکھاتا ہے اور ایسے ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں، سچویشن کچھ چل رہی ہے لیکن آپ کچھ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اچھا بھی ہے کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ کچھ سچویشن ایسی ہے، کچھ کے پارٹنر ایسے ہیں کہ وہ تھوڑے سے اس ٹائپ کے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں۔ ایک خاتون تھی ایکچوئل میں میرے ساتھ، وہ کلائنٹ ہی میری، تو ان کو ایسے ہی پہلے میں نے پریکٹس کروائی ہوئی تھی کہ آپ نا جب کبھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہو تو اپنے آپ کو اس ٹائم ایسے شو کرو کہ جیسے کسی اچھے پارک میں یا کوئی ایسے اچھے خوبصورت ہنسنے کے ایموجی دیکھو۔ تو شروع میں تو ہوا، اور بعد میں اس کے گھر وہ کہہ رہی کہ مطلب اتنا ایسا جھگڑے والا اور اس طرح کا ماحول تھا، لیکن اس کا مائنڈ کچھ ایسے دکھا رہا تھا کہ جیسے وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ تو ابھی مجھے آپ کی سچویشن سے بھی ہو رہا تھا کہ یہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن بہت حد تک ٹھیک نہیں بھی ہے۔ جب بہت زیادہ اگر آپ فینٹیسی میں اور لوگوں کو ان کے ساتھ کنیکٹیویٹی بنتی رہی تو پھر تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کہاں ہوں۔ وہی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں یہاں ہوں اور میری حرکتیں کیا ہو رہی ہیں، تو مجھے بہت آکورڈ فیل ہو رہا تھا، اس لیے تو میں نے آپ کو جلدی میسج کیا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر تو ٹائم پیریڈ بھی اس کا زیادہ ہوتا جا رہا تھا، اور کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا ہے، مطلب عصر سے لے کے اب تک آپ ٹائم دیکھ لیں، عشاء کے 10 بج گئے ہیں، وہی جی بس جی، ہو گئی۔ اب تو میرے کی اتنی زیادہ کیا ہو گیا امیجنیشن میں، وہ مطلب میں نے پاگل آپ ہو سے جاتا ہے کہ خود کو یہی میسج دیں نا، اپنے آپ کو سیٹ کریں، پروگرام کریں کہ میں نے اگر مجھے کسی کا میسج ریسیو بھی ہونا ہے نا تو مجھے اتنی دیر تک آئے کہ جب کانشیس میں آپ بول دیں کہ بس ٹھیک ہے مجھے پتہ چل گیا یہ کس طرف سے جو ہے نا مجھے نوٹیفیکیشن آئی ہے یا کس طرف کی سگنل ہے، بس اب میں نے اس کے آگے نہیں ریسیو کرنے، تو پھر اس طرح سے کم ہوگا۔ ورنہ ادروائز تو ہر دوسرے بندے کے ساتھ کنیکٹیویٹی بنتی ہے، اور جس کی جو پرابلم ہے آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی باڈی بتائے گی۔ اب ایون کہ دیکھیں یہ جو بیماریوں کا، اور کسی کو کوئی الرجی ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے، تو وہ آپ کی باڈی سینس کر کے بتائے گی، اس جگہ پہ آپ کو درد ہونا شروع ہو جائے گا، وہ اس ٹائم پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ مجھے نہیں، یہ کسی اور بندے کا، اور یہ ہوگا یہ آہستہ تو آہستہ۔ خطرناک کام ہے۔ نہیں وہ یہ تو ہے نا، پھر ظاہر ہے یہ بات مطلب سیکھنے کی بات نہیں ہے نا، اب تو فوکس ہونا شروع ہو گئے آپ لوگ۔ جو چیزیں بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں رکھی ہوئی ہیں، یہ پوٹینشیل ہے، یہ باہر سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا، یہ آپ نے اپنے آپ کو جانا۔ تو اس میں تو ہمارے لاشعور میں تو سب کچھ موجود ہے۔ جب ہمارا لاشعور ہمیں ایکسس دیتا ہے تو وہ کچھ چیزیں جو پری کوگنیشن وقت سے پہلے پتہ لگنے لگتی ہیں، اور پھر جو اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹرینڈ کر لیا کہ مجھے وقت سے پہلے پتہ چلے اور ساتھ ہی
मुझे उसका सॉल्यूशन भी हो। तो वो तो फिर पता, वरना हर दूसरे बंदे को होता। अक्सर सारे लोग कहते हैं कबूलियत की घड़ी थी या मेरी छठी इसने मुझे बता दिया, तो ये तो सारे पहले से ही बोलते। तो ये अब जो खुद को ट्रेंड करने के बाद चीजें आती हैं, तो वो तो देखें एक्सरसाइज की ना आपने, तो जब आपने स्मार्ट होना है, जिम में गए तो एक्सरसाइज की तो स्मार्टनेस तो नजर आएगी। तो अब आपने ब्रेन की एक्सरसाइज वही, तो उसकी नजर तो आ रही है ना। फिर अभी आपने देखा कि ये आपके एक्सपीरियंस जो हो रहे, तो वो होते रहेंगे। बस इसका खुद को उस लेवल तक कनेक्टिविटी रखें कि आपने फौरन से जिस किसी के साथ भी कनेक्शन बना, फौरन से अपने माइंड में मैसेज देकर मैंने इसका ना कनेक्शन कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्योंकि ज्यादा देर तक कनेक्शन बनता तो वो भी ठीक नहीं है, और कुछ नेगेटिव लोगों के साथ बनेगा तो वो नेगेटिव चीजें आएंगी। वो कोई अगर इतना बेचैन है तो आप फौरन इतना बेचैन हो जाएंगे, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, तो वो ज्यादा देर तो नहीं ना फिर आप इस चीज को अफोर्ड कर सकते। तो इसलिए कम से कम अपने आप को, अगर कनेक्टिविटी बनती भी है तो खुद से ही बोल दें कि नहीं, अब मैंने अपने माइंड को, ये अपने सेल्फ हिप्नोसिस है, सेल्फ रिप्रोग्रामिंग है, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करें, बताएं कि बस अब मुझे जब थोड़ा सा पता चल जाए तो उसके बाद ये कंडीशन खत्म होनी चाहिए। होता यही है कि जब तक आपको समझ नहीं आती कि ये किस तरफ से है, उस वक्त तक सिम्टम रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि जल्दी ही उसको जज कर लेंगे ये कहाँ से आया है। वही डिटेक्शन जो मैंने कहा था कि आप डिटेक्ट कर लें कि अब ये किस तरफ से है। साथ ही जिसकी सोच आई, बस उसके बाद अपने माइंड को कह लें ठीक है मुझे पता चल चुका है। तो आगे आज हम ठीक हो गया। बिल्कुल, और इसमें परेशान होने वाली ज़ाहिर, आप देखें अभी स्टार्टिंग में है, अप्स डाउन होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें समझ आएंगी, और फिर अपनी और ज़्यादा जब गहराइयों में जाते जाएंगे तो शुरू वाला लेवल तो फिर लगेगा कि वो कुछ भी नहीं था, और आहिस्ता आहिस्ता आपके नर्व जो है ना स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए नॉर्मल रहेंगी, इसमें कोई वो मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि पहले पता नहीं थी, और जैसे ही पता चली, जब भी कोई नई चीज़ सीखते, नई चीज़ समझ आती है तो एक्साइटमेंट और वो थोड़ी सी होती तो है ना, खुशी भी होती है साथ साथ, तो वक्त के साथ साथ फिर कम हो जाएगी। आप दोनों में से कोई बात करना चाहिए? डॉक्टर बिलाल की कल भी नहीं बात हो रही थी, तो आज आप पहले करके देखें आपकी वॉइस हमें आ रही है या नहीं। कल आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे, आज भी नहीं आ रही उनकी आवाज। आपकी इनकी आवाज किसी को आ रही है? अच्छा, आवाज इनकी मेरे ख्याल से आज भी नहीं आ रही। तो हम पहले थोड़ी सी मेडिटेशन कर लेते हैं एज यूजुअल, तो उसके बाद जो है ना फिर हम बाकी स्टार्ट करेंगे। हाँ, बोलो। ठीक है। पानी का ग्लास रख लें, और अपनी जो भी पोस्चर है अपने बैक स्ट्रेट रखनी है, और थोड़ा अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, और अपनी सांसों पे फोकस करें। 3 लंबी गहरी सांस लें। मुझे पता है कि म्यूजिक थोड़ा सा चाहिए या म्यूजिक ना लगाऊं। वो आज हमने जो मरकरी तो सबने देखी है कि हमने वो मेडिटेशन करनी है, इमेजिनेशन में देखना है कि हम मरकरी में डूब रहे हैं। तो मुझे टाइप करें अगर आपको म्यूजिक चाहिए तो। बुलाओ।
कुछ नहीं हो रहा है। आवाज म्यूजिक की देख लें, काफी है। अपने सांसों पे तवज्जो देते हुए अपना सारा ध्यान अपने पाँव की तरफ लेके जाएं। अपने दोनों पाँव को रिलैक्स करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवज्जो अपनी लोअर लेग की तरफ लेके जाएं और अलाउ करें इस एनर्जी को, रिलैक्सेशन को, ताकि आपकी बॉडी में फ्लो करे। जैसे जैसे आपकी लोअर लेग रिलैक्स हुई, इस एनर्जी ने फ्लो आपकी अपर बॉडी की तरफ ट्रेवल कर रही है। आपके घुटने, घुटने से होते हुए आपकी थाई, थाई से होते हुए आपके लोअर एब्डोमेन और यहाँ के सब ऑर्गन को रिलैक्स करती हुई ये हीलिंग एनर्जी आपकी इजाज़त से ये फ्लो कर रही है आपकी बॉडी में। जैसे जैसे आपने इसको अलाउ किया, ये एनर्जी आपके एब्डोमेन, चेस्ट, इसके सब ऑर्गन को, छोटे से छोटे मसल्स को रिलैक्स करती हुई ये एनर्जी फ्लो करी आपके अपर साइड पे, आपकी नेक पे, नेक से होते हुए आपके फेस, फेस से होते हुए आपका माथा, आपका सर, बैक साइड पे आपकी गर्दन, गर्दन से होते हुए आपके बाजू, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आपकी कोनी, कोनी से होते हुए आपके कलाई, कलाई से होते हुए आपके दोनों हाथ इस हीलिंग रिलैक्सिंग एनर्जी में अच्छे से फ्लोट कर रहे हैं। फील करें इस एनर्जी को, इस रिलैक्सेशन को, इस पीस को, इस कंफर्ट को। नेक से होते हुए बैक, बैक से ये एनर्जी आपके फ्लो कर रही है, आपके गर्दन से होते हुए आपकी पूरी स्पाइन को हील कर रही है और यहाँ से ये एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। आपकी बॉडी सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी टोटली रिलैक्स हो रही है। इस समय आप बहुत रिलैक्स, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत पीस महसूस कर रहे हैं। आप जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं और इसी रिलैक्सेशन और पीस की स्टेट में चले जाते हैं, आप बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। इसी रिलैक्सेशन, इसी पीस, इसी कंफर्ट के साथ आप अपने आप को तसव्वुर करें आप किसी टेरेस पे हैं और टेरेस से आप ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए 10 सीढ़ियां हैं। मैं 1 से लेकर 10 तक काउंट करूंगी। मेरी हर एक काउंटिंग पे आप और ज़्यादा रिलैक्सेशन, 3 गुना रिलैक्सेशन आपकी बॉडी में स्प्रेड करेगी और आप ग्राउंड पे आके अपने लिए कंफर्टेबल कोई भी जगह फाइंड करें। वो झूला हो सकता है, वो कोई सी साइड पे, किसी जगह पे भी जहाँ पे आप अपने आप को, किसी घास के मैदान में, किसी जगह पे जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, वहां पे आप इमेजिनेशन में जाएंगे। 1, 2, 3, आप स्टेयर्स से नीचे आ रहे हैं। 4, 5, हर एक स्टेयर आपको रिलैक्सेशन की और गहराई में लेके जा रही है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। इमेजिन करें कि आप ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हो और किसी ऐसी जगह पे अपने आप को, जो आपको कंफर्टेबल महसूस हो। वो कोई सोफा हो सकता है, कोई झूला हो सकता है, कोई सी साइड, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है, आप उस जगह को इमेजिनेशन में वहां पे अपने आप को
इमेजिन करें और इमेजिन करें कि एक बारिश की तरह एक मरकरी की बारिश हो रही है और मरकरी काफी हवी होती है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आपको। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, आपके गालों को, आपकी स्किन पे, आपके हाथों पे पड़ रही है। आसमान पे हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, बादल हल्के हल्के काले बादलों में तब्दील हो रहे हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये बारिश मरकरी की बारिश है। और देखेंगे जैसे आपकी बॉडी पे पड़ रही है तो आपके रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। और जहाँ पे ये बारिश पड़ रही है आपको महसूस हो रही है और हल्की हल्की मट्टी की खुशबू भी आ रही है आपको। और जहाँ पे गड्ढे हैं, खड्डे हैं थोड़े बहुत, उनमें मरकरी जमा हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता बादल बारिश में तब्दील हो रही है और ये बारिश आप महसूस कर रहे हैं आपके पाँव से आपकी टांगों तक। आहिस्ता आहिस्ता इस बारिश को महसूस करें, ये पूरी तरह आपकी बॉडी को भिगो रही है और साथ इर्द गिर्द हर जगह पे आपको पारा ही पारा नजर आ रहा है, मरकरी नजर आ रही है। इसी तस्वर को बनाए रखिए, अपना सारा ध्यान इसी पे रखें और यहाँ तक कि अपने दिमाग पे भी महसूस करें कि इसका वजन, इसका बोझ महसूस हो। जब पूरा जिस्म इसमें डूब जाए बारिश में, सफर बनने में शायद थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि हम जो पहले मेडिटेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में उस तरह का इमेजिनेशन बना होता है। शुरू में थोड़े से चंद सेकंड, चंद मिनट में आपको लगेगा जो पहले आपने नूर की मेडिटेशन की हैं, मुख्तलिफ मेडिटेशंस की हैं, शायद उन्हीं के इमेजिनेशन आपको बनता रहे। मरकरी थर्मामीटर में भी देखी होगी, बीपी अपरेटस के अंदर भी देखी होगी। उस पारे को आप विजुलाइज करें, सिल्वर कलर की। आप बहुत पीसफुल इंसान हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप हर सिचुएशन को लॉजिकली देखते हैं, आप अपने अंदर किसी भी एनर्जी को ज्यादा देर फ्लो नहीं करने देते। जब आपने अलार्म, जब आपने ट्यून सेट की है अपनी बॉडी में, बस ट्यून आपको रिसीव होती है और फिर आपको छोड़ देती है। आप कोई भी, किसी भी इंसान की नेगेटिव एनर्जी को स्पेशली अपनी बॉडी में फ्लो नहीं करने देते। आपकी बॉडी, आपका लाश और उसे रिजेक्ट कर देता है। ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर करा दिया है। आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करते हैं और पॉजिटिविटी को फैलाते हैं। दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को अपनी बॉडी में फ्लो नहीं करने देते। आपका लाशऊर, आपका सबकॉन्शियस आपको हमेशा उस जगह पे रखेगा जहां पे पॉजिटिविटी, पॉजिटिव लोगों से मिलवाएगा और जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। जहां पे आपके लिए मसाइल होंगे, आपका लाशऊर वहां से आपको रोक देगा, उसका सलूशन पहले से बता देगा। अब तसव्वुर करें बारिश आपको आपके घुटनों से लेके आपके एब्डामन तक आपको भिगो दिया, आप डूब रहे हैं उसमें, तैर रहे हैं, आप फ्लोट कर रहे हैं। पहले पल आपको थोड़ा भारी लगेगा, फिर आप उसमें इतना फ्लोट करेंगे, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढते हैं।
अपनी पर्पसफुल लाइफ में खुश हैं। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, आप इस उतार चढ़ाव में खुश हैं। अप्स एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है, आप इन चीजों को समझते हैं। आपके अंदर रेजिलियंस, आप बहुत ब्रेव हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट, आप बहुत खुश रहने वाले। आपकी खूबसूरत सांसें, हमारे बच्चे और आपसे खूबसूरत आपकी सांसें। सांसें हैं तो जिंदगी है। अपनी खूबसूरत सांसों का साथ है। आप अपना ख्याल रखते हैं, साथ साथ अपने प्यारों का, अल्लाह की बनाई मखलूक का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ने हर एक के लिए कोई ना कोई इनाम रखा है। आप सबकी जिंदगियों में भी अल्लाह ने कोई ना कोई इनाम रखा। अपने इनाम को पहचाने और लें, शुक्रगुजार। आप शुक्रगुजार इंसान बनते हैं, हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा है, अपनी काबिलियत पे, अपनी सलाहियतों पे। अल्लाह की दी हुई हर सलाहियत को आप ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने आपके अंदर बहुत सलाहियतें रखी हैं। आप अपनी सलाहियतों पे एतबार करते हैं, अपने आप पे एतबार करते हैं। थोड़ी देर इसी तवज्जो में रहें, इस मरकरी में फ्लोट करें। इतनी बारिश हो चुकी है कि आप पूरी तरह डूब चुके और आप इसमें बहुत रिलैक्स हैं, पुरसकून हैं। पहले आपको बोझ लगा, फिर आप बहुत रिलैक्स हो गए। लास्ट 2 मिनट अपना ध्यान, अपना फोकस बनाए रखिए।
Last 1 minute. हाफ मिनट। अब मैं 1 से लेके 5 तक काउंट करूंगी, आहिस्ता से आप दोबारा अवेयरनेस स्टेट में आएंगे। 1 2 आप पूरी तरह से अवेक हैं, अवेयरनेस स्टेट में, जहाँ पे बैठे हैं उस जगह को फील कर रहे हैं, उस छत को, उस फ्लोर को। 3 4 5 वाइड अवेक। आंखें खोल दें, 1 से लेके 5 तक काउंट करें और अपनी आंखों पे हाथ रख के आहिस्ता से आंखें खोल दें। पानी का ग्लास रखा है तो पानी पी लें। चलें, बताइए कैसा लगा और कुछ आपका फोकस बना या नहीं। और फिर बाकी साइन जो है आज हम उसको शुरू करते हैं। फोकस बन गया था, रिलैक्स भी हो गई और बॉडी भी बहुत ज्यादा लाइट हो गई, और Great. वो जो एक दिमाग में हलचल थी उससे शुक्र है सुकून मिल गया। उससे जान छूट गई, शिफ्ट हो गया ना, शिफ्ट हो गया। और क्या। बिल्कुल, ऐसे ही है। जब कभी ऐसे हो ना तो टोटली कोई ऐसा काम करो जहाँ पे दिमाग आपका लग जाए, तो उससे ये होगा कि माइंड शिफ्ट हो जाता है। अब खुद को खुद के साथ वही ना, मुझे कल किसी का मैं सुन रही थी कि वो कोई एक बादशाह था, तो एक बंदा उसके पास गया तो उसने कहा कि तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। तो उसे बहुत गुस्सा आया कि एक आम सा बंदा मुझे ये बात कर रहा है कि मैं इसके गुलामों का गुलाम हूँ। तो उसने कहा कि कैसे तुमने ये बात कर दी, ज़ाहिर है बादशाह है, उसके तो इतने गुलाम हैं। तो उसने कहा कि नफ्स मेरा गुलाम है और तुम उसके गुलाम हो। तो बात ये है कि हमने अपने बिल्कुल। दिमाग को कंट्रोल करना है। तो ये बात बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगी भी कि ये है कि जो लोग ख्वाहिशात के कंट्रोल में है, तो वो तो फिर ये हुआ ना, कंट्रोल, गुलाम हुए ना ख्वाहिशात के। तो जिस बंदे ने अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लिया, अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, तो वो तो फिर दूसरे लोग उसके गुलामों के गुलाम हुए। तो ये हमने कोशिश बिल्कुल करनी है कि अपने नफ्स को, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। अगर ये चीजें सीख बिल्कुल ली तो फिर आसान। सही है, इसको करूंगी। मैम जैसे सूफी में कहते हैं कि जो ख्वाहिश है ना, जी यही दुख है एक्चुअली, जी ये ट्रैप है। जी ये जितनी ख्वाहिशें है ना, जी आपको मीन्स के इसका एंड दुख में ही तब्दील हो जाता है। बिल्कुल। तो वही आपकी वही नफ्स वाली बात कि अपने नफ्स को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। देखिए, नफ्स के बारे में कितना आना कि नफ्स पे कंट्रोल रखो, दूसरा कदम जन्नत का। और फिर ख्वाहिशात की कुर्सी को हटाओगे तो उस पे अल्लाह आके बैठ जाएगा। हमने ख्वाहिशात को बिठाया हुआ, और ये विशेष तो खत्म होने वाली है ही नहीं ना। ये नहीं है कि हम यहाँ सरवाइव ना करें, अच्छा पहनना ओढ़ना, अच्छा खाना, अच्छा लाइफस्टाइल, ये बात नहीं है। बात ये है कि जैसे हमारा अपना कंपैरिजन जो है, जब ये जब हम सबकॉन्शियसली होते हैं ना, तो कोई बात जब करता है तो हम ये नहीं देखते कि इसकी बात को पहले सुने, उसके साथ हमदर्दी करें। हम क्रिटिसिज्म हटाएंगे तो वहाँ हमदर्दी स्टार्ट हो जाएगी, हमें एम्पैथी और सिंपैथी नजर आएगी। लेकिन हम जजमेंट को देते, जजमेंट सबसे पहले कोई भी बात करेगा, कोई भी महफिल है, मेल की है फीमेल की है, तो जब गपशप होती है, कोई बात होती है, तो उसमें कहेगी फलां कहेगी ये देखो
कि कोई गॉसिप स्टार्ट हुई कि फलां ने ऐसे किया, फलां ने, हर बंदा अपनी देना, अपनी वो जो है ना फौरन से कहेगा नहीं मैं तो नहीं ऐसे करता, मैं तो नहीं ऐसे करता, मैं ऐसे करता हूँ। तो जबकि उस बंदे की जिसकी बात हुई हमने सिर्फ सुनना है कि ये उस पर्सन ने किया, हम अपना क्यों देते वापस फौरन से जस्टिफिकेशन? वो इसलिए देते कि हम हर टाइम कंपैरिजन में रहते हैं, हम हर टाइम, हमारा लाशऊर करता ही यही है कि दूसरों के साथ कंपैरिजन में रहते। तो जब हम अपने इतनी सेल्फ एस्टीम बूस्ट कर लेंगे, अपनी सेल्फ एस्टीम के बारे में हमें पता होगा, तो उस लेवल पे चले जाएं कि ये अब जो कोई बात कर रहा है मैं उसको सुनूं, उसके साथ या मैं हमदर्दी करूं या उसको क्रिटिसिज्म करूं या जजमेंट करूं। कहीं अगर ऐसी चीज़ है जो पॉलिटिकल इशू पे बात हो रही है या कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे मतलब डिस्कशन है, क्रिटिकल एवेल्युएशन करनी है, तो ठीक है, वहाँ पे बंदा एज अ सेपरेट होकर अपनी ज़ात को अलग। लेकिन ये देखिएगा कि हमने नफ्स को कितना कंट्रोल रखा हुआ, हम ना चाहते हुए भी फौरन से अपने आप की जस्टिफिकेशन देंगे। अपनी जस्टिफिकेशन जहां स्टार्ट की हमने, इसका मतलब है कि मैं कंपैरिजन में चली। मुझे किसी ने अगर बात सुनाई है, किसी की बात हो रही है, तो उसमें मैं कहाँ हूं? वो तो उस पर्सन की बात हुई थी। तो ये तो बहुत ज्यादा गहराई की चीजें कि अपने ऊपर काम करने की चीजें, जैसे जैसे माशाल्लाह आप लोग तो कर भी रहे हैं, आप काफी इस लेवल के लोग हैं जो आप ने ये चूज किया है। तो अल्लाह ताला आपके मुकद्दर में, आपके नसीब में और आसानियां करे कि आप इस मंजिल को और अपनी रूहानियत को, स्पिरिचुअल अपने सफ़र को बहुत अच्छे से इतना अचीव करें कि वाकई आखिरत में जाते हुए सुकून से जाएं। और इसी तरह आप मेरे लिए भी दुआ करना कि मैं भी ऐसे ही काम करूं, खुद के लिए भी, और मेरे से जो लोग सुन के जो काम करते हैं, कोई गलत मेरे से इल्म ना चला जाए, मेरे से गलत चीज़ भी किसी की तरफ ना जाए कि जिसका मुझे डे ऑफ जजमेंट पे भुगतना पड़े। ये हर दफ़ा मैं यही कहती हूँ कि मैं टेलीपैथी का जो लोग मीनिंग लेते हैं, जो इसका मतलब एक लोगों के लिए, लोगों के दरमियान इसकी जो एक क्या कहें परसेप्शन है, उसकी वजह से इससे मैं डरती भी बहुत हूँ कि मैं ये चीज़, आपको पूरा कोर्स भी पूरा हो गया, मैंने एक दफ़ा भी आपको नहीं कहा कि लोगों के दिमाग को ऐसे कंट्रोल करो, जो आपके साथ ऐसा करता है हमें भी आपका है कि हम वापस करें। किसी टाइम भी मैंने ऐसी बात नहीं की। आप अपना पोटेंशियल देखें, अल्लाह ताला ने आपके अंदर पोटेंशियल डाला, अब यूटिलाइज, मैंने पहले भी बताया कि हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। अब अपने तक है कि उतनी चीज़ का इस्तेमाल करना कि जिसका कल को आप गुनाह ना हो। ये ना हो कि इल्म तो है, इल्म की अल्लाह ताला ने भी कहा कि इल्म बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने सिर्फ जो आपके नफ़े और फ़ायदे का उसको लो। तो ये चीज़ें कि आपने एक चीज़ ये देखनी है कि कोई ये रेसिप्रोसिटी है और यहाँ पे अकेले नहीं हम लोग, एक चीज़ बढ़ती है तो एक घटती है। तो अगर हम खुद को फ़ायदा देंगे तो ये ना हो कि साथ-साथ किसी को नुकसान भी दे रहे हैं। तो अपनी जो बाउंड्री सेट करें, अपना बेनिफिट भी लें और दूसरों को विन विन सिचुएशन। दुनिया में 3 तरह की एक विन विन सिचुएशन होती है कि मैं भी विन करूं, आप भी विन करें। एक होता है विन लूज कि मैं जीतूं और दूसरा हारे। फिर एक होता है कि लूज लूज। तो हमने, मेरे ख्याल से जो बेस्ट है, और वैसे भी रिसर्च के मुताबिक भी जो बेस्ट है वो है विन विन सिचुएशन। एक टाइम पे एक बंदा जीते और दूसरे टाइम पे दूसरा। इस तरह से ना तो एक बंदे के साथ ज्यादती होगी और ना ही ये होगा कि हर बारी मेरी होगी। सम टाइम अगर एक टाइम पे मैं जीतूं तो एक टाइम पे दूसरा भी जीते, और ये हमारी मेंटालिटी होती है कि विन विन सिचुएशन है। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें खुशी तब होती है कि दूसरा हारे, उसे अपने जीतने की भी इतनी खुशी नहीं होती जितना दूसरे की जो दूसरे को हराने की होती है। तो विन विन सिचुएशन में ये होता है कि ठीक है, इंसान खुद भी कभी हार जाए और दूसरे को भी कभी जिता दे। तो ये तो वैसे ही उसके साथ थोड़ा-सा टॉपिक से हटके चीज़ आ जाती है, जो थोड़ा-सा बीच में डिस्कस हो जाती है। तो हम जो पढ़ रहे थे उसमें से जो साइन है, एक ये साइन भी है कि जिस तरह से जो गूज़ बम्प है कि ये जो हमारी स्किन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे जो बगैर किसी वजह के जो रोंगटे खड़े होते हैं, उसमें एक तो ये चीज़ है कि जो तो बाज़ औक़ात तो कभी कोई सर्दी लगने की वजह से या कोई ज़्यादा जिस्मानी मशक्क़त की उस वजह से होता है। फिर जब बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के जज़्बात हम महसूस करते हैं, जब रूहानियत होती है, जब कोई स्पिरिचुअली कोई बात करता, तो ये मेरे साथ भी होता था, क्या पता आप लोगों के साथ हो रहा है या नहीं, कि मेरी जो है ना
ये गूज बम्प और एकदम से ठंड, मतलब स्किन पे बाल खड़े हो जाना और एकदम से ठंड महसूस करना, ये रूहानियत की वजह से भी है। तो अगर ये उस टाइम पे कोई ऐसी स्पिरिचुअली बात नहीं हो रही या आपके जहन में नहीं आ रही या आप किसी ऐसी महफिल में नहीं बैठे या किसी बंदे ने ऐसा जिक्र नहीं किया, तो उसके अलावा अगर आपके इस तरह से गूज बम्प खड़े हो तो वो भी एक उसकी निशानी है कि ये टेलीपैथिक मैसेज है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी गुमशुदगी और तमन्ना एक गैर मामूली जज्बाती एहसास है। ये आपके दिल को गहराइयों से छू सकता है, जो इस बात की वजाहत कर सकता है कि आप बगैर किसी जिस्मानी वजह के क्यों हंसी खुशी महसूस करें। जब अगर मैंने रीजंस बताई हैं, अगर वो रीजंस नहीं है तो उसके बगैर अगर आपके गूज़बम्प है तो इसका मतलब है कि वो आपका टेलीपैथिक कनेक्शन बना है। अच्छा, अभी 15 मिनट है और थोड़ा बहुत ये साइन है, ये रहते हैं और थोड़ी सी चीज़ें और भी हैं। तो अगर आज कंप्लीट ना हुई तो इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन, उस दिन हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे और थोड़ी सी मतलब डिस्कशन करके तो लेक्चर लास्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा आज मुश्किल है क्योंकि मेडिटेशन भी करनी थी, तो मेडिटेशन थी भी ज़रूरी कि वो कर ली। तो देख लेते हैं, फिर अगर नहीं ख़त्म हुआ तो फिर हम ट्यूसडे को कर लेंगे या फिर जिस दिन आप सारे अवेलेबल हों तो लास्ट क्लास इकट्ठे कर लेते हैं, बल्कि सबको इकट्ठा कर लेते हैं कि सारे आ जाएं। अच्छा, ये हिचकी भी है। हिचकी गैर इरादी तौर पर संगीन है जो आपके डायाफ्राम में होती है, और जबकि ये अक्सर कार्बोनेटेड अल्कोहल वाले मशरूबात या बड़े खाने की वजह से होती है। ये एक टेलीपैथिक अलामत भी है कि वो आपको याद करता है। मतलब इसमें सिर्फ ये तो इसलिए बताया गया कि किसी एक शख्स की, जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था कि कोई भी बंदा हो सकता है, आपके रिलेटिव, नेबर, आपके कुलीग, आपके जॉब में किसी के साथ भी जो ना आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सकती है, किसी का जो ना आपके साथ इमोशनल बॉन्ड बना हुआ है या किसी से आप मिले हैं तो दोबारा से आपकी वो एनर्जी मिक्स हो गई। तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने के लिए यही है कि जैसे कि एक लव बाउंड है तो सारी चीज़ें उसी के लिए कि वो आपको याद करता है, इस हवाले से ये लिखा ऐसे गया हुआ है, लेकिन ये सब जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। ये आपको बताने का आपके दिमाग का तरीका है कि कोई सोच रहा है या इस मामले में आपको याद करें। तो ये देखें कि जब ऐसे भी होता है कि जब हमें हिचकी या कुछ आती है तो हम अक्सर घरों में लोग कहते भी है ना कि आपको कोई याद कर रहा है। तो ये यही है कि ये जो हिकअप होती है ये इस वजह से भी है कि कोई टेलीपैथिकली आपको याद कर रहा है। अच्छा, इसके आगे भी ये चीज़ है कि एक तो हिचकी अक्सर जोश की वजह से आती है कि वो आपको और आप इसे देखकर बहुत पुरजोश है। अफसोस की बात यह है कि हिचकी मनफी तमन्नाई की अलामत भी हो सकती है। अगर अक्सर किसी मखसूस शख्स के इर्द गिर्द होता है तो ये फर्द अपनी बुरी तमन्नाई आपकी तरफ लेकर जा सकता है। अच्छा, इसमें मैं बताऊं कि ये जब कभी अगर आपको खाना खाते हुए या कोई आपके इर्द-गिर्द बंदा आया, कोई ऐसा टाइम है ही नहीं कि आपको इस वक़्त हिचकी क्यों लगी। वो आपको एक नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही होती है और ये भी है, और मेरे साथ ये ऐसा होता है। आप में से किसी के साथ अगर हुआ है तो नेक्स्ट आप नोट कीजिएगा। मैं अब इतना मेरे माइंड ने ये मुझे वही मेरे दिमाग के बताने का तरीका है कि मैं फ़ोन पे जिससे बात कर रही होती हूँ ना, मुझे हिकअप स्टार्ट होती है और मुझे पता चल जाता है कि इस पर्सन के अंदर बहुत नेगेटिविटी है। तो ये एक तो ये है कि ये पॉजिटिविटी भी बताती है कि जो कोई जिस बंदे के साथ आपका कनेक्शन है या बॉन्ड है, जो बंदा आपको लगा है कि अभी उस बंदे हिकअप के साथ-साथ किसी का आपके ज़हन में भी आया, तो वो एक अच्छा भी है कि वो भी बहुत खुश है आपसे, एक पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, और एक दूसरी नेगेटिव वाली है। तो नेगेटिव वाली भी आप फिर देखिएगा कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या नेक्स्ट कभी हुआ तो फिर देखिएगा। मेरे साथ तो होता है, अब तो मेरा इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं इतनी बुरी तरह हिकअप स्टार्ट होती है और मुझे पता चल जाता है कि मेरे इर्द-गिर्द नेगेटिविटी, और अगर फ़ोन पे हो तो फिर ज़ाहिर वो तो साफ पता चल जाता है कि मैं जिसके साथ बात कर रही हूँ, जिसकी काउंसलिंग है, या तो वो तो काफ़ी उसके अंदर नेगेटिविटी है। अब 15 पे है योर नोज इचिंग। हमारे जो नाक पे जो इचिंग होती है, ये पिछला मैंने बताया, ये जो इचिंग वाला कहाँ गया, ये आगे आएगा। ये देखिए इचिंग जो होती है ना कि नाक में जो खारिश वगैरह होने लगती है, मतलब ये देखिए। अच्छा, ये भी है कि हमारा हर कल्चर के लिए कोई ना कोई सिंबल मुख्तलिफ है।
अब हम जैसे इस पाकिस्तान में रहते तो हमारे लिए कुछ चीज़ें अलग वो सिंबॉलिक रखती हैं और कुछ कल्चर के लिए अलग रखती हैं। जैसे आयरिश का मानना है कि खारिश वाली नाक का मतलब है पकने वाली लड़ाई। अब उनको ये है कि नाक पे जब खारिश हो रही है तो उनको लग रहा है कि बस अभी कोई लड़ाई होने वाली है, लेकिन ये ज़्यादातर लोगों के लिए मुख्तलिफ मीनिंग रखता है। तो हमारे जितने भी सिम्पटम है, ये कुछ चीज़ें तो सारा ये जो मटेरियल है वो तो दूसरे कंट्री का भी है, तो हमारा अपने हिसाब से होगा। कुछ चीज़ें तो हमारे हिसाब से ठीक ही हैं और हमने अपने हिसाब से वो अगेन अपनी बॉडी को भी ट्रेन करना है तो अपने हिसाब से होगा। एक के लिए ये टेलीपैथिक अलामत है कि वो आपको बहुत याद करता है, वो आपके बारे में सोच रहा है और ये हैरत अंगेज़ तौर पर आपकी खारिश नाक से ज़ाहिर हो रही है। याद रखें, आपकी नाक में खारिश होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। ये नाक की सोजिश की वजह से हो सकता है, जो जर्क धूल के ज़र्रात सड़ना, मतलब जैसे डस्ट होती है और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उस वजह से भी जो ना आपको नाक में खारिश हो सकती है। कभी गर्मियों की वजह से भी होती है, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो इसके अलावा अगर हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो टेलीपैथिक मैसेज की वजह से ही। लेकिन अगर आप अपनी नाक की खारिश के लिए कोई मुमकिना मरक तलाश नहीं कर पा रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि वो आपको याद करता है और वो आपके साथ टेलीपैथिक तरीके से बात कर रहा है। अब बाज़ दफ़ा होता है, लेकिन हर दफ़ा हम नोट तो नहीं करते कि मुझे अभी खारिश क्यों हुई। अब नेक्स्ट टाइम नोट कीजिएगा ना, पता चलेगा। लेकिन अगर आप अपनी नाक की खारिश के लिए कोई अच्छा ये हो चुका है। अब नंबर 16 है कि कान लाल होना, और ये देखना कि मैंने भी देखा है और शायद आप भी ऑब्जर्व करेंगे कि अपने कान भी सम टाइम और दूसरों के कान भी देखिएगा उसके। क्या अपने कानों के गिर्द जलन महसूस करते हैं? जैसा कि आपको जब भी कोई शर्मिंदगी होती है महसूस, उस वक्त भी देखें जब हम बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी कान लाल होते हैं। अगर कोई अजीब वाक़या नहीं है जो आपको इस तरह महसूस करा रहा है, मतलब जैसे आपको कोई शाइनेस नहीं हो रही, कुछ भी नहीं, तो ये एक और टेलीपैथिक अलामत है कि वो आपको याद कर रहा है। आपके कानों के पीछे ये एहसास इससे भी आगे जा सकता है कि वो आपको याद कर रहा है। ये एक नफ्सियाती अलामत हो सकती है कि वो आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन इसने कहा आपके चेहरे पर तमाम गर्म या जलन वाले एहसासात मुस्बत ख्यालात की तरफ इशारा नहीं करते। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके गाल जल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन प्यार भरे अंदाज में नहीं। इसका मतलब है कि आपके गाल या चीक एकदम से हॉट फील हो रहे हैं और वो कोई आपके बारे में नेगेटिव है और नेगेटिविटी आपको बता भी नहीं सकता। अच्छा 9 मिनट रह गए, फिर मुझे कहिएगा ये ना मैं बोलती रहूँ। तो ये भी देखिएगा कि आइंदा के लिए, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हमने तो कभी नोट नहीं की ना, तो हैं ये सारे टेलीपैथिक मैसेज ही हैं। वो मनफी तवानाई पैदा कर रहा है, लिहाजा आपको इससे खुद को बचाने की ज़रूरत है। इसे हासिल करने के लिए आपको ये करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में मुस्बित चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दें, अपनी ज़ाती ताकत पर काम करें, मसाइल के बजाय हल के बारे में सोचें, खुद की देखभाल की मशक करें। ये जो फेस और कान लाल होने का और एकदम से जलन और गर्मी महसूस होना, ये नेगेटिव भी है। तो जब ये होगा तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये कोई मेरे इर्द-गिर्द नेगेटिव है और मुझे कुछ वो सामने फेस टू फेस आके कह नहीं सकता, लेकिन अंदर से मुझे नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। अब खाने के दौरान आपको कुछ तकलीफ महसूस होती है, ये भी है। कहीं आप आहिस्ता-आहिस्ता से खा रहे हैं क्योंकि आप इस डिश का मज़ा लेना चाहते हैं, जैसे आपने एहतियात से तैयार किया, फिर अचानक आपको खांसी आती है, मतलब आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, कोई जल्दी भी नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके खा रहे हैं, तो या इससे भी बदतर दम घुटने लगता है और होता है कभी कि एकदम से जो है ना हिचकी आती है। हाँ, इस तरह की तकलीफ महसूस करना तशवीशनाक है, ख़ास तौर पर जब आपके लिए ऐसा महसूस करने की कोई वजह ना हो। आप सबके बाद एक मोहतात खाना खाने वाले हैं। इसने कहा ये तकलीफ आप में मुंतकिल होने वाली तवानाइयों की वजह से हो सकती है और ये भी नेगेटिव है। जब आपको खाना खाते हुए इस तरह से एकदम से हिचकी आती है और आपको एकदम से सम टाइम दम भी घुटने लगता है, तो ये भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ ट्रांसमिट हो रही है। जब कोई लड़का आपके बारे में सोचता है तो वो इस तनाव को बेच सकता है, जैसे वो टेलीपैथिक तौर पर महसूस करता है। दूसरी तरफ ये तनाव जिस्मानी तौर पर किसी किस्म की तकलीफ के ज़रिए ज़ाहिर होता है जब आप खाते हैं। अगरचे हर बार आप जब खाते हैं तो मुहतात रहने की अदायगी होती है, लेकिन आपके लिए इस ख्वाहिश को रोकने का कोई तरीका नहीं है, ख़ासकर अगर वो इसे शिद्दत से महसूस करें। अब मतलब आप नॉर्मली ठीक खाना खा रहे हैं, रिलैक्स खा रहे हैं, आहिस्ता खा रहे हैं,
कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ ऐसा हो रहा था, इसका मतलब है कि वो टेलीपैथिक मैसेज है। कम से कम आप ये कर सकते हैं कि इसे कॉल करें और इसे बताएं कि आप भी इसे याद करते हैं। ये जब आपको पता चलेगा तब बताएंगे। फिर उसको कहेंगे भाई तू जान छट। क्योंकि खाते हुए तो बहुत मुश्किल हो रही है ना, यही है ना। तो अब ये है कहीं, अच्छा ये वही चीज है, ये हमने पढ़ लिया ना। तो अब हमारा अच्छा ये फीदर वाला, ये भी कभी आपको मिला है कि नहीं? ये अक्सर पंख पे मिलते हैं, जहाँ पे कम से कम बर्ड नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं है, लेकिन आपको इस तरह के, अच्छा इन पंख का भी हर जगह पे मुख्तलिफ सिंबल है। हमारे यहाँ सफेद पंख तो अच्छी की अलामत है, तो ये भी देखिएगा कि ये जो सफेद पंख वगैरह मिलते हैं, ये भी इसका मतलब भी टेलीपैथिक मैसेज। अगर आपको सफेद पंख मिलता है ऐसी जगह जहां पर बिल्कुल भी पंख नहीं होना चाहिए, जान लें कि ये एक टेलीपैथिक और रूहानी निशानी है कि वो आपको याद करता है। सफेद खाने वाला एक किस्म का टोकन है, वो आपको पैगाम भेजना चाहता है कि वो आपको याद करता है, हालांकि वो अभी ये कहने को तैयार नहीं है। इसी तरह ये इस बात की अलामत है कि वो आपके साथ बहुत प्यार करता है, इसके पास खालिस मोहब्बत है। देखिए अगेन हमारे यहाँ सफेद जो कलर है वो इन्हीं चीजों को, यही सिंबल है, और वो आपके लिए अजीम इरादों के सिवा कुछ नहीं है। ये एक पॉजिटिव जो है ना वो निशानी है। इसकी एक वजह ये कहने में हिचकिचाहट है कि वो मुझे आपकी याद आती है, वो ये है कि वो चाहता है कि सब कुछ मुकम्मिल हो तभी, लिहाजा अगर आपको अचानक सफेद पंख मिल जाता है तो जान लें कि वो आपको ये बताने की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि वो आपको याद करता है। यकीनन वो सही वक्त आने पर बताएगा। तो ये सफेद पंख जब नजर आएंगे, ये बटरफ्लाई, ये भी है कि इनका भी मुख्तलिफ जगहों जो तितलियां हैं, और ये होता है मेरे साथ भी होता है, ये बटरफ्लाई काफी जगहों पे आती हैं। तो ये आपको एक खूबसूरत तितली मिलती है। तितली एक खूबसूरत जानवर है जिसमें बहुत सारी अलामतें होती हैं। मकामी अमरीकियों के लिए तितली उम्मीद, मुस्बत सुकून और तब्दीली की अलामत है। इसी तरह मुसन्निफ अरिका बोनाफ्लोर का ख्याल है कि तितलियां उम्मीद, बहादुरी और पुरज़्म की नुमाइंदगी करती हैं। तो ये देख लें फिर, ये इसका भी ये तितली का भी सिंबल अच्छा है, ये भी पॉजिटिव है। अपनी किताब एनिमल मेडिसिन में इसने लिखा है, किसी को देखना इस बात की अलामत है कि मुस्बत तब्दीली आ रही है। वो अगर किसी ने बटरफ्लाई देखी है तो उसका मतलब है कि एक जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव, और बहादुर को में आप पर नजर रखे हुए हैं और खूबसूरत तितलियों को यकीनी बना रही है। तितली आपको एतमाद के साथ अपनी तब्दीली के जरिए बहने की तरगीब देती है। इसी तरह मुसन्नफ आना क्रेड बैरेट के लिए ये इन तरीकों को उजागर कर सकता है जिनके साथ हम ज़ाती तौर पर बातचीत करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में तितली को देखना एक खास टेलीपैथिक कनेक्शन की नुमाइंदगी करता है जिसे आप अपने महबूब के साथ बांटते हैं। इस तल्लक की बदौलत ये तितली अपने ज़ाती कामदियों के तौर पर काम कर सकती है। वो आपको बताना चाहता है कि वो आपको याद करता है, वो आपसे मिलने का इंतज़ार नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर बटरफ्लाई आ रही है तो जो कोई आपके साथ जिसका भी कनेक्शन है वो आपको मिस कर रहा है। यहाँ तक कि अगर वो आपकी आईना रूह है तो आप दोनों जहरीली, मतलब वही ट्विन फ्लेम तबाहकुन ताकतों के साथ खत्म हो सकते हैं जो अक्सर जोड़वा शोलों के साथ रिश्तों के साथ होता है। इसने कहा आप जैसी जोड़वा शोला शरारतें अब भी मुस्बत और तरक्की पसंद हो सकती हैं, आपकी मोहब्बत और तवानाई को सही तरीके से मुस्बत मुंतकिल करने का मामला। अच्छा, जब दोनों लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन उनके दरमियान होती है, तो उसमें एक मामला ये भी होता है केस स्टडी कि वो होती है कि ये एक अट्रैक्शन है। जब इंसान किसी की तरफ बहुत फोर्स के साथ जाएगा तो रिपल्शन आती है। तो इसी तरह जिन दो जोड़े जो कपल होते हैं या दो बहुत प्यार करने वाले होते हैं, वो क्यों दोबारा से उनके दरमियान झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होती है और वो अलग भी हो जाते हैं, उसमें यही है कि वो जब भी एक दूसरे के करीब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इंसान की एनर्जी की एक रिपल्शन होती है। तो वो जो जितना ज्यादा उनकी एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, वो करीब जाते हैं तो उसी जो रिपल्शन है उसके जो साइंटिफिक वो है लॉ है रिपल्शन का, लॉ ऑफ रिपल्शन, तो उसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर होते। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा भी एनर्जी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। देखें जब भी दो लोग या तो
वो लोग उनको जुदा कर देते हैं या वो खुद जुदा हो जाते हैं। तो उसमें यही ला होता है कि वो इतनी जो उनकी अट्रैक्शन होती है, जितनी एनर्जी, जितनी फोर्स के साथ वो एक दूसरे के करीब आते हैं, उतनी ही वो फिर दूर भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा डिस्टेंस और थोड़ा सा गैप और थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को कम एनर्जी देनी चाहिए। तो अभी ये खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह जो थोड़ा सा रह गया है, तो वो हम नेक्स्ट किसी डे पे हम इस क्लास को रख लेंगे। तो फिर ये केस स्टडी और थॉट रीडिंग और ये थोड़ी सी चीज़ें और ड्रीम टेलीपैथी ये बस रह गया, जिसको हम जनरली डिस्कस करेंगे। और फिर बाकी हम आपस में बातचीत करेंगे और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सारे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी डे पे डिसाइड करके हम लास्ट क्लास ले लेंगे। और अभी टाइम मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है।